Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with sectional and self-balancing ledger system. आज अपने बेसिकली क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया है. वहीं से आज अपने क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद क्वेश्चन वन. क्वेश्चन वन आप सभी के साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं. क्वेश्चन को पहले रीड करके डिस्कस करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सेल्स लेजर adjustment account in the nominal ledger. So what is nominal ledger? Nominal ledger is the general ledger. General ledger. Sales ledger adjustment account means debtors account in the nominal ledger. अब debtors ledger balance debit credit दोनों दिया हुआ है on the opening date. So 1st April 2019 को debtors ledger balance on the opening date दिया हुआ है. Credit and debit दोनों. तो debit balance will come on the debit side to balance B by D. Credit will come on the credit side by balance B by D 1000 rupees. Yes, agreed. Chat box में सब जन participate करेंगे. A for agreed. Participate करो. Sales अपने को क्या करना है? In the general ledger, in the nominal ledger, we need to prepare sales ledger adjustment account. तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 45,000, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी 1,000. अच्छा, ये 1,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? ए से शुरू होता है. 1,000 क्या रिप्रेजेंट? Advance. एडवांस. एडवांस. ओके. देन आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा. बिल्कुल जैसे डेटर्स अकाउंट बनाते हैं वैसे ही सोचना है. जैसे सेल्स डेबिट साइड या क्रेडिट साइड बोलो. सेल्स डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड. डेबिट साइड. बैड डेट डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड. yes or no? Miscellaneous charges debited, so this has to be on the debit side. Debited लिखा हुआ है. Cash received. Cash received. Credit side. Returns inward is sales return. Which side? Credit side. Bad debts recovered. Bad debts recovered. Bad debts recovered never comes in the debtors account. Because what is a journal entry for bad debt recovery? Cash or bank account debit to bad debt recovery. Debtors account में bad debt recovery नहीं आता है. Because debtors account को already अपने write off हटा चुके थे at the time of bad debt itself. तो बैड डेट के टाइम में ही डेटर्स अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया था. सो वो डेटर्स अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है. अभी उन बदमाश डेटर्स से पैसा रिकवर हुआ है. ये बिजनेस के लिए इनकम है. तो इनकम का नेम इज बैड डेट रिकवरी. सो इनकम को क्रेडिट करेंगे, बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट करेंगे. कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी. सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी. So entry is cash account debit to bad debt recovery. So bad debt recovery will not come in the debtors account. So it will not come in the sales ledger adjustment account. Clear? So bad debt recovery will not come. It will not come. इसके लिए अपने को क्या देना है? एक नोट देना है. Bills receivable received. ये कहां पर आएगा? Credit side. Discount allowed. Credit side. Discount allowed. Credit side. Transfer from bot ledger.
transfer from bought ledger means purchases ledger, means creditors ledger. So creditors account में से 75,000 को adjust करना है. So debtors भी decrease होता है, creditors भी decrease होता है. Debtors भी decrease होता है, creditors भी decrease होता है. याद करो mutual set off. Debtors भी decrease होता है, creditors भी decrease होता है. तो debtors का decrease का side कौन सा है? Credit side. So transfer from bought ledger. आप खुद ही सोचो, bought ledger means creditors ledger. Creditors ledger से अपने क्या टाने होंगे? Credit, तो ये debtors account के credit side में आएगा और creditors account के debit side में आएगा. Entry is creditors account debit to debtors account. So creditors और debtors दोनों को decrease कर रहे हैं. Entry is creditors account debit to debtors account. Clear है सबको? एक बार चैट बॉक्स में yes नो बताओ. सब जन लिखेंगे. जितने भी जन क्लास अटेंड कर रहे हैं सबकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए. Everyone should respond. जिसको नहीं समझ में आए वो पॉइंट बताओ, वो समझा दूंगा दोबारा. ठीक है, ओके. चलो अब बनाते हैं. ये स्टार्टिंग में अपने को फॉर्मेट रेडी करना है इस तरीके से. स्टार्टिंग में फॉर्मेट रेडी करना है इस तरीके से. इन द नॉमिनल लेजर, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू बैलेंस बी बाई डी बाई बैलेंस पी बाई डी, सॉरी बाई बैलेंस पी बाई डी होगा. टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा. डेबिट बैलेंस कितना है? 45,000. क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1,000. ठीक है,
फिर एक एक करके आइटम्स लो। सेल्स, डेबिट साइड में सेल्स 4,10,000। बैड डेट्स, क्रेडिट साइड में बैड डेट्स 1,650। मिसलेनियस चार्जेस डेबिटेड, तो डेबिट साइड में मिसलेनियस चार्जेस 175। कैश रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में कैश रिसीव्ड रिटर्न्स इनवर्ड, सेल्स रिटर्न 5,000। रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं। बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ट्रांसफर फ्रॉम ब्रॉट लेजर। बॉट लेजर से ट्रांसफर हुआ, बॉट लेजर मींस क्रेडिटर्स लेजर, सो क्रेडिटर्स से क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्रेडिटर्स डेटर्स दोनों डिक्रीज करना है, डेटर्स को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड में 75 रुपीज लिखेंगे। हो गया। सिंपली क्या करना है, लेजर को बैलेंस करना है। लेजर को बैलेंस करूं, क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, जनरली क्या होता है, एक साइड का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया होता है और दूसरे साइड का क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना होता है। लेजर को जैसे बैलेंस करते हैं वैसे करके दूसरे साइड का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना होता है। तो जनरली एक साइड का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया होता है, दूसरे साइड का क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करना होता है। बट इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दोनों साइड का नहीं दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग बैलेंस एक ही साइड का निकल पाएगा, तो एक ही साइड का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। जनरली डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, यानी डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल। तो लेजर को बैलेंस करने के लिए बैलेंस अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस सी बाई डी। बाय बैलेंस सी बाई डी इज डेबिट बैलेंस, बिकॉज व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, लेजर को बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सी बाई डी लिखते हैं। डन। चैट बॉक्स में यस लिखो, डन।
दिशा डन, मैत्री डन, स्वर्णवो, जानवी, विदीप्ता। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। द फॉलोइंग डिटेल्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर रहमान for the period ended 31st December 2020। हम लोग को क्या बनाना है? प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए बोला है, यानी ये कौन से सिस्टम का पार्ट है? सेक्शनल या सेल्फ बैलेंसिंग? चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। इफ द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फॉर टोटल डेटर्स अकाउंट, total debtors account is part of which system? Sectional balancing system or self balancing system? Sir, it is sectional balancing system। तो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, तो इससे सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम भी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है? इन द जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट, इन द जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। डेटर्स लेजर बैलेंसेस डेबिट क्रेडिट, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। टू बैलेंस बी बाई डी, डेबिट साइड में 12,400, बाई बैलेंस बी बाई डी क्रेडिट साइड में 270 रुपीज। टू बैलेंस बी बाई डी 12,400, बाई बैलेंस बी बाई डी 270 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या ये डेटर्स अकाउंट में आता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डोंट टेल मी आता है, ये नहीं आता है। सिर्फ बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपने डेटर्स से लेस करके दिखाते हैं। क्वेश्चन में केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का कोई इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, डेटर्स अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आता है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिर्फ बैलेंस शीट में अपने डेटर्स से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेस करके दिखाते हैं, अदरवाइज ये इसके अकाउंट में नहीं आता, डेटर्स अकाउंट में नहीं आता। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, लिखता है कौन सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखता है, जब अपने टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में नहीं है, अपने सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में है। तो जब सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरे को ये बताओ, क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड में टू जेंडर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई जेंडर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? वाई फॉर यस एंड फॉर नो, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? मैत्री सेज नो, विदिता सेज नो, Swarnavo says no, Disha says no, Suvashi says no. Answer is absolutely no. Never. तो कैसे करके लिखना है दोस्तों? जैसे सेल्स आएगा, सेल्स है तो डेबिट साइड में टू सेल्स, डेबिट साइड में टू सेल्स, कैश रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में बाई कैश, बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई सेल्स रिटर्न, इस तरीके से। सो वो जो टू सेल्स अपने लिख रहे हैं ना, that is the total sales made to all the debtors। क्रेडिट साइड में जो बाई कैश लिख रहे हैं, that is the total collection in cash received from all the debtors। क्रेडिट साइड में जो बाई बिल्स रिसीवेबल लिख रहे हैं, that is the total bills receivable received
from all the customers. Sales return, that is a total sales return. Hence, total debtors account. तो जितने भी कंपनी के डेटर्स है, बिजनेस के डेटर्स है, उन सारे डेटर्स का टोटल अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, जिसमें यू हैव total sales made to all the debtors, total cash received from all the debtors, total bills receivable received from all the debtors, and so on. अच्छा, नेक्स्ट एक चीज मेरे को ये बताओ, सेल्स में डेटर्स अकाउंट में कैश सेल्स आता है या सिर्फ क्रेडिट सेल्स आता है? डेटर्स अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आता है, कैश सेल्स नहीं आता है। ठीक है, सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 4,000, 23,000. So 23,000 includes cash sales of rupees 4,000. So what is the amount of credit sales? 19,000. 19,000 is the amount of credit sales. 19,000 is the amount of credit sales. समझ में आया बात? Okay. 19,000 is the amount of credit sales. 23,000 minus 4,000, 19,000. ठीक है, ये डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स करके लिखेंगे। कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड में बाय कैश, bills receivable received credit side में buy bills receivable account, returns from customers, this is sales return, credit side में buy sales return, bills endorsed, bills endorsed का मतलब क्या होता है? जो बिल डेटर्स से मिला है उसको हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। तो बिल जब डेटर्स से मिला था उसको डेटर्स अकाउंट में लिखे थे, क्रेडिट साइड में बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेटर से बिल मिल चुका है, तो जैसे ही डेटर से बिल मिला उस समय लिख दिए थे डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट में ऑलरेडी आ गया है। अभी ये बिल को हम क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर रहे हैं। ये बिल बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, तो ये एसेट क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट होता है, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इधर में क्रेडिटर्स आर रिसीविंग bills receivable which the business entity has received from the debtors. Your creditors are receiving the bills receivable, तो creditors receiver है, creditors account debit, bills receivable is an asset, goes out credit। तो bill endorsed का क्या एंट्री पास होता है? creditors account debit to bills receivable। Hence debtors account पिक्चर में आया ही नहीं। डेटर्स अकाउंट पिक्चर में कब आया था? जब बिल को रिसीव किए थे। अभी बिल को एंडोर्स कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, याद करो क्लास 11 में बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर था, एंडोर्समेंट अपने पढ़े थे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो ये डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। क्लास 11 में बिल्स रिसीवेबल के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में बैड डेट रिकवरी का नोट देना भूल गए अपने, तो सोल्यूशन में जाकर नोट दे दो। बैड डेट रिकवरी will not come in sales ledger adjustment account.
बिल्स डिसऑनर्ड, जब बिल रिसीव हुआ था तब क्या एंट्री पास किया था? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल। अब वो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, वैल्यू लेस हो गया है, तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर इन द सेंस कि डेटर ने इसका पेमेंट करने से मना कर दिया। मना करने से क्या होगा, ये पैसा अपने डेटर से ही लेंगे। बिल का मैच्योरिटी खत्म, तो बिल तो वैल्यूलेस हो गया। बिल का मैच्योरिटी खत्म, बिल वैल्यूलेस हो गया, बट ये पैसा हम डेटर से लेंगे, डेटर से ये पैसा बिजनेस को रिसीव होगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल। चेक्स डिसऑनर्ड टू बैंक, डेबिट साइड में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब चेक रिसीव हुआ था तो क्या एंट्री पास किए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैंक, तो जब यही चेक डिसऑनर हो रहा है एंट्री रिवर्स कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट साइड में टू बैंक, यानी बैंक में ये पैसा जमा हुआ ही नहीं, तो बैंक इंक्रीज कहां से हुआ, तो बैंक को डिक्रीज कर देंगे टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पैसा डेटर से लोगे। डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, ध्यान से सुनो। एंडोर्समेंट के केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। हाँ, जब डेटर से बिल मिला था तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स किए थे, फिर जब ये बिल को एंडोर्स किया तो क्या एंट्री पास किया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब डेटर से बिल्स मिला था तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, वही बिल जब क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो इससे हो क्या रहा है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स में से आउट हो जा रहे हैं, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के पास है ही नहीं। किसके पास है, क्रेडिटर्स के पास है। आपने क्रेडिटर्स को वो एंडोर्स कर दिया ना, तो बिल बिजनेस में है ही नहीं। बिल किसके पास है, क्रेडिटर्स के पास है, इसलिए बुक्स से भी बिल्स हट गया है। पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट होकर बिल बुक्स में से हट गया है, बिकॉज बिल बिजनेस के पास है ही नहीं, वो बिल क्रेडिटर्स के पास है। क्रेडिटर्स बिल का पेमेंट लेने के लिए हमारे डेटर्स के पास जाता है, डेटर ये बिल का डिसऑनर कर देता है, यानी पेमेंट करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। तो क्रेडिटर्स ये बिल का पैसा लेने के लिए किसके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, बिकॉज हमने ही क्रेडिटर्स को ये बिल दिया था। और ये बिल का पैसा हम किससे लेंगे, हमारे डेटर से लेंगे। क्रेडिटर्स ये पैसा हमसे लेंगे और हम ये पैसा डेटर से लेंगे, तो क्रेडिटर्स दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा और डेटर दोबारा से डेटर बन जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कैसे, बिकॉज जब एंडोर्समेंट हुआ था ये दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट है जब एंडोर्समेंट हो रहा है। और जब एंडोर्स वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स रिवर्स हो रहे हैं, बिकॉज क्रेडिटर ये बिल का पैसा हमसे लेगा, तो वी आर लाइबल टू पे, वी आर लाइबल टू पे, वी आर लाइबल टू पे टू क्रेडिटर्स।
and this amount we shall take it from debtors. So we are to receive from debtors. So debtors becomes our receivable once again, and creditors becomes our liability once again. So debtors account debit to creditors account. ये चीज सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सब जन बहुत प्यार से यस बोलेंगे। सबको क्लियर है? मैत्री को क्लियर है? बाकी सब जन भी? हाँ, आई न्यू दिस वुड कम फ्रॉम यू, एक्सपेक्टेड। विदित्ता को क्लियर है? बाकी सब जन बताओ। जानवी को क्लियर है? ओके। श्वर्णव को क्लियर है? नाइस नाइस नाइस। ठीक है, देखो, जब डेटर से अपने को बिल रिसीव हुआ था, अटेंशन पे करो प्लीज, अदरवाइज आप क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज पे अटेंशन। जब डेटर से बिल रिसीव हुआ था तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को ये बिल एंडोर्स कर दिए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कैंसल आउट हो गया, यानी बचा क्या? क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल हमारे पास है ही नहीं, बिकॉज हमने उसे क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया। वो बिल क्रेडिटर्स के पास है, बिजनेस के पास वो बिल है ही नहीं, तो इसलिए बिजनेस के बुक्स में भी बिल्स नहीं है। बिल बुक्स में से एग्जिट हो गया है। एग्जिट कैसे हुआ? क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल करके वो बिल एग्जिट हो गया है, तो बिल बुक्स में है ही नहीं। बिल किसके पास है? बिजनेस के पास नहीं है, क्रेडिटर्स के पास है। क्रेडिटर्स वो बिल का पेमेंट लेकर हमारे डेटर्स के पास जाता है, डेटर्स पेमेंट करने से इनकार कर देते हैं, बिल का डिसऑनर हो जाता है, तो क्रेडिटर्स वो बिल का पैसा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं। वी आर लाइबल टू पे टू आवर क्रेडिटर्स वंस अगेन। द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स इंक्रीजेस। क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और ये बिल का पैसा हम अब किससे वसूलेंगे? डेटर्स से लेंगे। सो डेटर्स से ये पैसा हमें रिसीव होएगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब समझ में आया वो सेम चीज रिपीट करने के बाद? नाउ इट इज बेटर फॉर यू? हाँ, नाइस। ओके, सो डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल्स के लिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज, ये जो बिल्स का एंट्रीज वगैरह ना, ये क्लास 11 का टॉपिक्स है। क्लास 11 में किया था ये बिल्स रिसीव, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में ये सब कुछ किया हुआ है, क्लास 11 का टॉपिक्स है ये। सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग का टॉपिक्स नहीं है। सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग का टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो गए, अभी क्लास 11 का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? बिल का पैसा अभी लेना। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? बिल का पैसा अभी लेना। सो डेटर से हमें बिल मिला, हमने क्या किया? बैंक में जाकर उसको पैसा ले लिया, तो बैंक में पैसा आ गया, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, और बिल चला गया। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड मतलब क्या? बिल को मैच्योरिटी से पहले बिल का पैसा लेना। ठीक है, तो कैसे ले सकते हैं? बैंक में जाते हैं, बिल को प्रेजेंट करते हैं, बैंक ये बिल रखकर हमें बिल का पैसा दे देता है। सर बैंक ऐसा क्यों करता है? फॉर सम डिस्काउंटिंग चार्जेस, फॉर सम डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक इसके लिए चार्ज करता है। जैसे बिल का अमाउंट अगर 1 लाख रुपया है, तो बैंक हमें 1 लाख रुपया नहीं देता, 99,000 देता है। ठीक है, 99,000 रुपीज देता है, 1,000 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर। बैंक के पास ये बिल है, अब बैंक क्या करेगा? दिशा अच्छी से सुनना प्लीज, हाँ? ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, आई विल आस्क यू टू रिपीट। ठीक है दिशा, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। ठीक है, विथ अटेंशन, पे अटेंशन इन द क्लास। तो ये बिल किसके पास है? ये बिल बैंक के पास है। अब बैंक ये बिल लेकर, अब बैंक क्या करेगा? बिल
लेकर बिल का मैच्योरिटी तक का वेट करेगा। बैंक क्या करेगा, बिल लेकर बिल के मैच्योरिटी तक का वेट करेगा, और मैच्योरिटी में बैंक ये बिल लेकर हमारे डेटर्स के पास जाएगा। डेटर्स से बैंक रुपया लेगा। डेटर्स कितना देगा बैंक को, 1 लाख रुपया। तो बैंक के पास आ गया ना 1 लाख रुपया, बैंक के पास आ गया 1 लाख रुपया। बैंक ने पहले क्या किया था, हमें 99,000 दिया था, और मैच्योरिटी डेट में बैंक को हमारे डेटर से 1 लाख रुपया मिला। तो बैंक के लिए इनकम हो गया 1,000 रुपीज का। समझ में आया? तो हमें डेटर से जब बिल मिला, हमें डेटर से जब बिल मिला, डेटर से जब बिल मिला, तो डेटर्स अकाउंट, डेटर से जब बिल मिला, तो बिल इज एन एसेट, एसेट कम्स इन डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख का बिल है, सपोज 1 लाख का बिल है, 1 लाख, 1 लाख, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब ये बिल बिजनेस के पास है, बिजनेस को ये पैसा अब भी चाहिए, तो अब भी कैसे ले सकता है बिजनेस ये पैसा? बिजनेस को तो बिल का मैच्योरिटी तक का वेट करना होगा। मैच्योरिटी 90 डेज के बाद है, तो 90 डेज वेट करना होगा। तो बिजनेस को पैसा भी चाहिए, तो बिजनेस क्या कर सकता है, बैंक में जाकर ये बिल प्रेजेंट करेगा। बिजनेस बैंक में जाकर ये बिल प्रेजेंट करेगा। बिल 1 लाख रुपया का है, यानी एसेट 1 लाख रुपया का है, तो बैंक ये 1 लाख रुपया अपने पास रख लेगा। सॉरी, ये 1 लाख रुपया का बिल, 1 लाख रुपया का बिल अपने पास रख लेगा बैंक, ये 1 लाख रुपया का बिल अपने पास रख लेगा। ठीक है, और हमें 99,000 देगा, 1,000 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर। बिकॉज बिकॉज बैंक आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। 90 डेज के बाद जो पैसा हमें मिलता, वो हमें बैंक अभी दे रहा है। तो ये 90 डेज का जो इंटरेस्ट है, बैंक इसको अप फ्रंट बिल के अमाउंट में से माइनस करके बैलेंस अमाउंट हमें देगा। तो ये 1,000 क्या है, 90 डेज का इंटरेस्ट। बिकॉज बैंक बिकॉज बिल से जो 1 लाख रुपीज आपको मिलता, वो 90 डेज के बाद मिलता, 90 डेज के बाद मिलता। बट अभी वो पैसा बैंक से आपको मिल रहा है, तो बैंक इसके लिए इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेगा। आई बात समझ में? दिस इज डिस्काउंटिंग चार्जेस, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बैंक 1 लाख रुपए का बिल रखा, 1 लाख रुपए का बिल रखा, हमें 99,000 पकड़ा दिया, हमारे पास 99,000 रुपीज आ गया, हमारे एंड से बिल चला गया। हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में 99,000 आया, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 1,000, डिस्काउंट ऑन बिल का खर्चा है, एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 1,000, डिस्काउंट ऑन बिल का खर्चा है 1,000 रुपीज, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज 1 लाख रुपए का बिल्स निकल जा रहा है, गोज आउट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। दिस इज एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के एंट्री में कहीं पर भी डेटर्स आया क्या पिक्चर में? आंसर इज नो। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के एंट्री में डेटर्स पिक्चर में नहीं आएगा, बिकॉज डेटर से जब आपको बिल रिसीव हुआ था, तभी आपने उसकी एंट्री पास कर दी थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब ये बिल आपकी एसेट है, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसको बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा के पैसा ले सकते हैं, क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर सकते हैं। इससे डेटर्स को क्या फर्क पड़ेगा? डेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी डेट में डेटर के पास जो भी आएगा पैसा लेने के लिए, डेटर उसको पैसा दे देगा। ये बिल किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक क्या करेगा, 90 डेज का वेट करेगा, 90 डेज बाद बैंक डेटर के पास जाएगा, और डेटर से 1 लाख रुपया बिल का लेगा। डेटर से उसको 1 लाख रुपया मिला, बैंक को 1 लाख रुपया मिला। बैंक ने इनिशियली ये बिल के लिए कितना दिया था, हमें 99,000 दिया था,
अभी बैंक को ये बिल के अगेंस्ट में कितना मिला, 1 लाख रुपया, तो ये 1000 रुपीज क्या है, डिस्काउंट। बैंक का इनकम है ये, ठीक है, ये बैंक का इनकम है। ये डिस्काउंटिंग का प्रोसीजर है। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम बैंक में जाते हैं और बिल का पैसा ले लेते हैं, थोड़े चार्जेस डिडक्ट करता है बैंक और बिल का पैसा ले लेते हैं, मैच्योरिटी तक का वेट नहीं करते। क्लियर है सबको? सो एंट्री क्या पास हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। ठीक है, सब जन पार्टिसिपेट करो। दिशा ने बोला उसको क्लियर है, बाकी सब जन भी बोलो यस क्लियर है। अच्छा क्लियर है तो मेरे को बताओ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एंट्री क्या डेटर्स अकाउंट में आएगा? डेटर्स अकाउंट में डिस्काउंटिंग का एंट्री आएगा? आंसर इज नो, नेवर। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस किया, देखो जब डेटर से अपने को बिल्स रिसीव होगा ना, तब उसका एंट्री पास हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद आप वो बिल को एंडोर्स करो अपने क्रेडिटर्स को, या उस बिल को जाकर डिस्काउंट कराओ, कुछ भी करो, इसका इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड टू कस्टमर्स, ये डेटर्स अकाउंट के कौन से साइड में आएगा बोलो, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? किसको याद है, इंटरेस्ट चार्ज्ड डेबिट साइड। बैड डेट रिकवरी डेटर्स अकाउंट में आएगा, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, फटाफट, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। बैड डेट रिकवरी डेटर्स अकाउंट में आएगा, वाई फॉर यस एंड फॉर नो? आंसर इज नो। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर बोलो, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर कौन सी साइड, डेबिट या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। सर ऑलमोस्ट बहुत सारे आइटम्स रिपीट हुए हैं। हाँ रिपीट तो होंगे ही ना, यही तो चीज है, इजी है, रिपीट तो होंगे ही। आप खाली ये सारे सम्स प्रैक्टिस करो, देखना आपको एग्जाम में कितना कंफर्टेबल फील होगा। डेबिट बैलेंस 12,400, क्रेडिट बैलेंस 270। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कोई इफेक्ट टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। देन सेल्स, सेल्स में क्रेडिट सेल्स। अच्छा डेट्स लिखना है, डेट्स लिखो, 1 जन 2020, 31 दिसंबर 2020,
ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डेट्स लिख दो। फर्स्ट अप्रैल 2019। ठीक है, अभी दोबारा रिवीजन हो जाएगा। टू सेल्स 19,000, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, क्रेडिट सेल से लिखेंगे 23,000 माइनस 4,000। 18,500 buy bills receivable 3,000 buy sales return 380 bills endorsed। ये डेटर्स अकाउंट में आएगा बिल्स एंडोर्स्ड? क्या लगता है डेटर्स अकाउंट में आएगा? वाई फॉर यस एंड फॉर नो? नो पक्का? चलो नो, तो बिल्स एंडोर्स्ड will not come। bills dishonored to bills receivable dishonored 300 checks dishonored dishonor of endorsed bills। dishonor of endorsed bills आएगा? dishonor of endorsed bills, dishonor of endorsed bills। Yes, yes, it will come। Endorsed bills won't come, dishonor of endorsed bills will come। एंडोर्समेंट मतलब बिल्स मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया है, क्रेडिटर्स वो बिल को लेकर डेटर्स के पास जाएंगे पेमेंट लेने के लिए। डेटर्स अगर बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, बिल को डिसऑनर करते, तो क्रेडिटर्स किसके पास आएगा बिल का पेमेंट लेने के लिए? हमारे पास। और हम ये पैसा किससे लेंगे? हमारे डेटर्स से। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
कितना है? 240। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड आएगा, यस और नो? बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड आएगा? नो। बाय बैड डेट्स। Then interest charged. There is so much of noise in the background. You all are also able to hear the noise in the background क्या? आप तक जा रहा है वो noise background वाला? रिपब्लिक डे ना? नहीं ना? That's okay. रिपब्लिक डे ना, there's पाड़ा में वो म्यूजिक चल रहा है. You can understand the loudspeakers. It's so difficult over here to take classes. To interest. Ten. Recovery of bad debts ने का transfer from bot ledger. Transfer from bot ledger means creditors से वो बैलेंस टान कर लेकर आए हैं. क्रेडिटर से भी लेस हो रहा है, डेटर से भी लेस होगा. Creditors account debit to debtors account. Creditors account debit to debtors account. Please check if I've made any mistake because there's a lot of noise coming in the background. Unable to concentrate. You'll just check, huh? If I've missed out anything, सही है. चलो. $9,600 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. If it's done, please write done. डन. अच्छा, कल कितने लोगों का ट्यूटोरियल एग्जाम है? वाई फॉर यस एंड फॉर नो. माइन. जानवी. अच्छा, सबका ट्यूटोरियल एग्जाम है. तो कल का क्लास अपने किसी और दिन रख लेंगे. ठीक है, कल क्लास नहीं रख रहे हैं. विदीप्ता का नहीं है? यत्न का ट्यूटोरियल एग्जाम कब है, किस दिन? शोर्णव का तो हो चुका है. विदीप्ता का सर नो सर ऑन 5th. ओके ओके. ठीक है, तो कल सबका ट्यूटोरियल एग्जाम है, कल अपने क्लास नहीं रख रहे.
कल का क्लास मैं किसी और दिन करवा दूंगा, नेक्स्ट वीक या फ्राइडे, नेक्स्ट वीक फ्राइडे, ऐसे कुछ करके। ठीक है, नॉट टू वरी। ठीक है, या वेडनेसडे, वेडनेसडे या फ्राइडे, मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे में करवा सकता हूँ क्लास। तो कल का क्लास में वेडनेसडे करवा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं तो फिर फ्राइडे। ठीक है, तो गाइज आज यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय।